Institute of Management, PHU. As I told you in the morning that he has some internship options for some students. So, Harsh sir, Yeah, okay. he'll be talking to you for some time about the problems he had and how students can interact with him, how they can share the problems. Over to you, sir. Okay, thank you, mom, for the opportunity to interact within your class. Hello, students. How are you? So, are we having complete strength or it is 30-40% of the strength? Because I don't know what the batch size. What's the batch size, students? Can you? Some students are in other optional courses. So it is a batch of 45. Among that, 31 students have taken this course. Okay, it's an elective course. It's not a compulsory course. Got it. Okay. Yeah, it's an elective. So today, so let me tell you my background a little bit before I begin to what opportunities I have. So basically, I am an engineer from Delhi College of Engineering, now DTU, and I was All India rank JEE 31,000. Then I did my MBA from IIT Delhi, did my PhD from IIT Bombay, taught 1 year in IIM Bodhgaya, and right now here I am teaching statistics and operations, so mathematically based courses. Primarily, why I requested ma'am, because I somehow feel that mathematics has been neglected, especially for engineers, like that they just go do an MBA and then they forget what they have to do, or they go into their core field. So the concepts of mathematics is generally ignored. So it was my fortune that I was able to understand one domain called financial markets or financial engineering or quantitative finance, where actually whatever dy by dx and integration and Leibniz theorem we can use for the practical purposes. And this will be an interactive session. You can ask any question anytime, that's not an issue. But so what I was trying to introduce you to is a concept of quantitative finance, and I will just be going on hands-on thing because I am working also in this. Though quantitative finance is a very big domain, and there is a certification called financial risk management. Have you heard of that? So people of mathematics can go in this, because generally I see they go to either economics or statistics, but even they can go to finance if they plan for an MBA, financial mathematics or financial engineering or quantitative finance is the field. Okay. So I assume everybody is a plus 12th science PCM. That's an assumption because this is the first time interacting in maths department. Is that correct? Can I assume that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will take you to a little concept, a little introduction. You just listen. Yes, sir. Okay, listen to me, and just any time you have question, you can ask me. I will go to the board. I don't want to make presentation because hearing is more important. So suppose, how many of you heard of insurance? Yes, sir. Insurance business. How do you think? Why do you think they run? How they can survive? If you pay 5,000 rupees to them and they are saying that you have an insurance of 25 lakh rupees of this and this, then how do you think they will survive? Because More people do insurance. okay, and that's it. Investment support. Yeah, so you have to understand investment. Can you Investor support, sir. investor support means what? Hello, investor. So many people invest in their company. Okay, oh that's fine. Okay, so many people invest in their company, but that if you see will not be the complete. I was just focusing on the financial equation, so that is there. But as she said, many people will invest in. Many people are giving the insurance. Now, suppose I hope you understand the concept of probability also. So if I keep on taking, okay ma'am, no problem, thank you. Yeah. So if I keep on taking money from 1,000 people, how many money I will have?
If I take 5,000 rupees per person, I take from 1,000 people. How much money I will have? How much? How much? Lakhs. How much lakhs? Is it 50 lakhs. 5,000 rupees from 1,000 people. 50 lakhs. Yeah, okay. Now, and I am paying for 25 lakhs. So, if only 2 people claim out of 1,000, only then I am going to get losses, considering only this model. We have operative costs otherwise. Okay? Do you understand that? Hello? Yes, sir. So the probability my insurance amount and my premium, there are two things, premium and insurance. Insurance is the amount of security you are expecting for, like 25 lakhs in this case. That actually depends on the probability of the incident happening. The incident means claim this time. Is that agreeable? Everybody agrees with this? Hello? So please repeat. I am saying the premium I am charging, the insured amount I am ready to pay, and the probability of the claim will ultimately decide my profit. Yes. Okay. Now why I am coming to this? Because pricing of these things are done on mathematical models. आपको ये समझ में आना चाहिए, because I don't know how much mathematics you will use in future, but many people just use integration differentiation, and they somehow, if they don't want to core field, they forget it and then not use much use of that. Okay, now we will come to financial market. How come this insurance concept is applied in the market? Are you ready? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody has any idea of stock market? क्योंकि आप लोग फाइनेंस के बंदे हैं तो कुछ नंबर खेलते रहते होंगे. I'm just asking. Anyone? सर जिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत इंक्रीज कर रहा है, हाँ. नहीं मतलब लोग मैं प्रीमियम कर नहीं, so do you follow it? मतलब what you are saying that you invest in those companies where the profit is coming. I understand. What else? यस सर. That's it. That is all. Okay. कोई एक्टिव है इसमें जो प्राइस ट्रैक करता है आप में से कंपनी का? नहीं. Okay. Let me share my screen. तो practically दिखाई देता हूँ. I thought somebody might be doing it. So let's talk of any share. कोई शेयर बताइए. Nifty 50. Can you repeat that? Nifty 50 companies. I am not able to understand. चलो let's put ZTV Limited. ZTV I could understand. Nifty company. Nifty 50. Asian Paints. Asian Paints. Yeah. चलो let's put it that. Asian Paints. Share. Okay. Let's put it this way. Right now it is at 3001. Suppose, let's understand this way. You bought the share at this point. Can you see the bar? 20th July. Okay. Hello. Can you hear me? Yes, sir. यस सर. The market, this market is going on, therefore number is changing. So you bought a share at 3,159 rupees. ठीक है? Now can you consider this an asset? It's an asset. Yes or no? It's an asset, like your car is an asset, you have insurance for that. Your health is an asset, you have insurance for that. Okay? Can we consider this an asset? Hello. Yes, sir. यस सर. Okay, so देखो Yes, sir. थोड़ा इस इंश्योरेंस कंसेप्ट को समझो, in the sense that when you play life insurance, you are actually trying to avoid losses.
दैट्स ऑल. लॉसेस मतलब कि फाइनेंशियल लॉस होगा. एग्रीड? You are trying to Yes, avoid sir. financial losses. When you take medical Yes, sir. insurance also, you are trying to avoid the medical losses. You are trying to minimize it. Yes or no? Yes, sir. Okay. ठीक है. Now suppose you bought at 3,000 rupees, 3,159. Now the price immediately come to 2,950. Right, or 3,000. Do you have a loss of 159 rupees or not? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये Yes, sir. सोचिए, ये तो एक की बात है, एक वॉल्यूम. अगर ये वॉल्यूम लाखों में हो या हजारों में हो तो क्या होगा? जो आपने मार्केट में सुना है, शेयर मार्केट डूब गया, ये हो Yes, गया. sir. होता है ना, हार्ट अटैक आ गया, सारा पैसा डूब गया. Yes, So sir. now if I come to you and say कि भैया देखिए, अब listen to me, that the moment it Yes, goes, sir. the moment it goes below 3,100, I say to you as a person, the moment it goes below 3,100, I will pay all the losses, and for this contract for you pay me 20 rupees. तुम्हें क्या लगता है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? I will pay all losses. कितना भी नीचे चला जाए 3,100 से, I will pay you all. हेलो, Yes. can you repeat that? नहीं, चलो मैं तुम्हें उस पर दिखाता हूँ. I think you are not able to get it. Yes, sir. Can you see the camera? Can you see the camera? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Okay. Just a second. सब सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक ठीक? Yes, sir. मैम इज देयर और मैम डज नॉट. किसी के पास कंट्रोल होगा गूगल मीट का? एनीबॉडी हैज कंट्रोल? एनीवेज, तो कोई बात नहीं. सो यू बॉट एट 3,000. कैन यू रीड इट? 3,159. ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं द मोमेंट इट गोज बिलो 3,100, आई विल पे ऑल ऑफ द मनी टू यू. ठीक है, मैं आपको पे करूंगा. ठीक है, एंड फॉर एंटरिंग इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट यू पे मी 50 रुपीज. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस डील? It is a reverse image. Reverse आ रहा है, sir, word. वही मैं आपसे पूछ रहा था ना. Sir, mirror image है. हाँ, that is what I was asking you. That if it is a mirror image, who has the control of the? Let me say what we say. क्या कहते हैं उसको? The Google image, the Google Meet. मैम के पास है? हेलो, Yes, sir. एक मिनट Yes. रुकिए, जस्ट अ सेकंड. ये आजकल बहुत होता है, मिरर इमेज हो जाता है. एंड इनिशियली यू वर सेइंग इट इज राइट. जस्ट अ सेकंड, डोंट वरी. कैन यू सी द कैमरा? कैमरा दिखाई दे रहा है आपको? Yeah, can you see the camera? Yes, sir. Now is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Is it fine Yes, now? sir. Okay, now. Yes, sir. So I told you कि आपने Asian Paints इसने buy किया. Okay. And now I am saying the moment it Yes, goes, sir. okay, the moment it goes below this, I will pay all losses. ठीक है? You pay me 50 rupees only. Is that a profitable deal or not? मतलब is it an insurance or not? Yes, sir. Not. Is it an insurance or not? क्योंकि you are minimizing your losses. Yes.
You are minimizing your losses to 59 rupees plus 50 rupees. 59 तो आपका जाएगा प्लस 50, लेकिन कितना भी नीचे जाए, that's all. This is the maximum loss you will have. Is that clear? Yes, sir. Is Yes, this sir. an insurance Yes, sir. or not? Is this an insurance or not? पहले तो ये बताओ. Hello. Yes, sir. This is answer. This is an The insurance. insurance है, sir. ठीक है. Now comes the mathematics part here. अब मैं जो बंदा हूँ, I am taking a risk. I am paying 50 rupees. I am taking 50 rupees from you, but I am ready to pay everything to you. Am I or am I not? Yes, sir. LIC में तो ये रहता है कि 25 लाख कवर है. यहाँ तो मैं कह रहा हूँ जितना नीचे जाएगा उतना कवर होगा, उतना मुझे पे करना Yes. होगा. Agreed? Agreed or not? Yes, sir. So here Yes, sir. here I have the premium, I have Yes, the sir. down loss and I have the probability. मेरा सारा गेम यहाँ पर ये है, how much probability of this event happening. That's it. जितनी मेरे को उसी के अंडरस्टैंडिंग से मैं चार्ज करूंगा. What you think? Suppose अगर ये आपने खरीदा होता 3,200 पे, I would have been charging less or more than you. 50 रुपीज से कम करता, ज़्यादा करता. तो ज़्यादा कर देते. क्यों ज़्यादा करता? मेरे प्रोबेबिलिटी दूर है ना ये. Suppose your age at 60 and your age at 30. When do you pay more premium for the same amount of maturity? 60. ज़्यादा होगा. Because तो yeah, again the probability, the farther the distance, the lesser the probability of this happening. ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, 3200 पे. इसकी probability 2100 पे आने में इसका डेल्टा ज़्यादा होगा ना, डेल्टा कम होगा ना स्पीड का. बिकॉज जो y है आपका, अगर टाइम सेम रख लें तो ऊपर 100 पॉइंट का गेम है और नीचे वाले में 50 पॉइंट का गेम है, 59. तो दिस विल बी स्लोअर देन दिस और नॉट. Yes, sir. So that means my premium also changes where you are buying. Now coming back, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे gradually as we go ahead if you want to, and I will come to the practical part also. This is called an option. किसी ने नाम सुना है? ये नाम सुना है, ऑप्शन एंड फ्यूचर? Have you heard? Sir. No, sir. No, sir. किसी ने yes कहा है, किसी ने yes नहीं कहा. Have you heard of this? Derivatives. Yes, sir. Have you heard? Yes, sir. Derivative in Yes. financial markets. Yes, sir. In financial markets. आपको डेरिवेटिव तो सुना है आपने, वो तो मुझे पता है, तभी तो मैथ्स पढ़ रहे हो. कैलकुलस वाला ही है, बट इन फाइनेंशियल मार्केट्स. हैव यू हर्ड ऑफ दिस और नॉट? Yes or No, no? sir. Yes, sir. Thought में पर No, sir. Hello, can you repeat that? Somebody said yes or no? कोई yes वाला है कि नहीं है? No, sir. ठीक No, है. sir. So no problem. And that is what I was telling you. This course is this information very important because ये knowledge आपकी जो basic dy by dx आप कर रहे हैं, आज की real life में apply हो रही है. And if you are good at that maths, we can make lot of money. And we can get into those companies which work on this. So this is called, मैंने पहले ही बताया, ये एक होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. ये एक डिग्री है, किसी को सर्टिफिकेशन का शौक है तो FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. इसमें यू डोंट जस्ट स्टडी मैथ्स, यू हैव टू स्टडी फाइनेंस, मतलब फाइनेंस ऑल्सो अकाउंटिंग बेसिक्स. ओके, तो यू कैन नॉट फॉरगेट फाइनेंस अकाउंटिंग. देन यू हैव कैपिटल मार्केट्स, ओके, और यू कैन डू योर ओन ट्रेडिंग. ठीक है, ओन ट्रेडिंग. अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ पर आया हूँ. आई वॉज नॉट व्हाट वी से इनटू फाइनेंस डोमेन. मुझे भी ये 2 साल पहले पता लगा है व्हाट इज दिस. बट जब से मैंने ये पढ़ा है, आई एम अप्लाइंग ऑल द मैथमेटिक्स हियर. ओके, सो हाउ मच टाइम भी है? 4 बजे तक, कब तक क्लास है?
क्लास कब तक है? टिल व्हाट द क्लास इज? 5. Five. 5. Good. Very good. We have good enough of 2 hours and we can engage you. ठीक है? So please understand. पहले हम लोग इसमें जाएंगे. ये सर्टिफिकेशन है जिसको MBA, वो बहुत से लोग होते हैं MBA करना है, किसमें करना पता नहीं. You can do MBA in finance, quantitative finance. I told you. These are the courses. These are expensive, but if you want to, so there are companies who are open for finance people who can do big mathematics. Nobel Prize मैथ्स में मिलता है नहीं मिलता है? Yes or no? नो सर। इकोनॉमिक्स में मिलता है ना? नो सर। क्या कह रहे हैं? या प्लीज टेल मी, डू वी गेट नोबेल प्राइज इन मैथ्स में मैथ नहीं और मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है। नहीं, तो क्यों नहीं मिलता है? कभी सोचा है? There is no as such practical real life use as they say. That's the point I'm trying to tell you कि आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, that's fine, but ultimately दुनिया भी उसे तब रियलाइज करती है when you can demonstrate कि हाँ इसकी यूटिलिटी क्या है, किस डोमेन में कर रहे हैं. सो इकोनॉमिक्स में मिलता है क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू सोशल लाइफ, ठीक है, सोशल पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग. सो देयरफॉर मैथ्स इज अ टूल, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड. फिजिक्स में भी मिलता है, लेकिन फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स लगा के मिलता है, ठीक है. सो मैथ्स इज नॉट something which you can leave, but it in itself it is not sufficient, unfortunately. How much do you agree with this? Yes sir. ठीक है. इवन स्टैटिस्टिक्स जो है आपका, किसी को पता है DRS, द डिसीजन रिव्यू सिस्टम, यू नो दैट क्रिकेट में? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज मेड बाय ISI स्टूडेंट्स. ISI मतलब स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है. वहां पर एप्लीकेशन क्या था मैथ्स का, अल्टीमेटली मैथ्स का ही एप्लीकेशन था. So you have to understand that. So now we are going to get this concepts of derivatives into financial markets. Okay, I am not going to give you a brief of derivative because derivative is a very 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 large topic. अलग अलग तरह के डेरिवेटिव होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है. Okay, and any of you want to ask question can ask. Is that fine? ठीक है. Any questions till now? Anyone? Hello? No, sir. Okay. No, sir. So the point Hello, sir. is, hello? Sir, which one is best, sir? Trading for a financial risk management or capital market? Can you repeat that? Which one is best, sir? Which one is best? Yes, sir. नहीं, Trading या नहीं, देखो यार, ये जो बेस्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, this you have to understand by your own competency. It is not. देखो, दुनिया is like desert and polar region. If you are a camel, go for desert. If you are a polar bear, go for Arctic region. हर जगह बहुत लॉस है. You must have heard on trading also. You can't make profit. I can tell you in trading. What is the percentile of cat? IIM अहमदाबाद में बैठते हैं. What do you think? कितना? 99? More than 99%. 99.5 से ऊपर रहता है. आजकल थोड़ा वैसा है because they have English and this and that, but in my time it was 99.5. If you just go and conduct, trading is even difficult than this. Why? Because not everybody does it systematically, and here is where your mathematics skills, if you apply properly, can do that. So trading और financial risk management difference होता है. It's just like you are asking me, sir, is coaching better or cricket playing is better? समझ रहे हो? Financial risk management is coaching. Okay? Hello? Yes, sir. Sir. And trading is playing. And it is possible, many people who knows everything about leg side, off side, but they can't hit a single six. And there are many people who do not know anything, but they hit a six. समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन है थ्योरी और प्रैक्टिस का. तो ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर. I cannot tell you until unless I know you thoroughly. I'll be very frank on that. Okay? Yes. ठीक है. So now, any other questions? नहीं. Now we said that कि भाई अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है,
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. somebody says मार्केट नीचे जाता है, आई एम रेडी टू इंश्योर यू बिलो अ लेवल, ठीक है, फॉर विच आई टेक प्रीमियम। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एज अ इंश्योरेंस और ऑप्शन सेलर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग दैट आई विल टेक अ प्रीमियम और उससे नीचे जितना भी घाटा वो पूरा मेरा। इज दैट करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेक्निकली, क्योंकि मैथमेटिक्स एक फील्ड है जिसमें यू डोंट जस्ट टॉक ऑफ नेचुरल नंबर्स, यू ऑल्सो टॉक ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सो देर आर स्कूल ऑफ थॉट्स विच से कि यार बाय ओनली डाउन साइड, पुट ओनली अपसाइड ऑल्सो। इफ मार्केट गोज बिलो अबव, इंश्योरेंस अबव अ लेवल। अब ये कौन करता है आपको मैं बाद में बताऊंगा, फॉर विच आई टेक प्रीमियम। कंसेप्चुअली हो सकता है ना, नंबर लाइन ही तो है। नंबर लाइन के जो मैं वो कह रहा हूं आपके, दिस इज नेगेटिव, आई होप यू अंडरस्टैंड नेगेटिव नंबर लाइन। देखो भाई, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जेई का मैथमेटिक्स समझ सकते हो, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था बीएचयू के मैथमेटिक्स में जो आता है वो जेई का मैथ्स समझ ही सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये नेगेटिव नंबर लाइन है, ठीक है। एंड बी सेड बिलो, मतलब अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं इंश्योर करूंगा, ओके। आई सेड दिस अर्लियर, डिडंट आई? वो 3100 वाला एग्जांपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. So somebody can say, yaar, why only this side also? So this is called a put option. अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा वर्ड। दिस इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। और अगर आप अपने YouTube पे अभी लिखें पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन, you will immediately find it, okay? You will immediately find multiple YouTube videos, but YouTube वाले मैथमेटिक्स में बात नहीं करते completely. They will talk in common sense and I will try to teach you mathematics. तो ये हो गया पुट ऑप्शन, ये हो गया कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर मैंने 3100 पे खरीदा है, तुमने खरीदा, मतलब यू आर द ऑप्शन बायर और ये ऑप्शन सेलर, तो दिस पर्सन इज सेइंग सपोज द प्राइस गोज मोर देन 3200, हाउ मच प्राइस गोज अबव, आई विल पे यू। एग्रीड? दिस इज कॉल ऑप्शन। Yes, sir. यस सर, ओके। नाउ इसको मैथमेटिकली देखते हैं। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. So there are two parts. One is the seller, one is the buyer. So buyer का प्रीमियम जाएगा, that's all. Buyer has only loss of premium and some other losses. Agreed? So buyer has limited loss. Agreed? Is this fine? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Seller has unlimited loss. Agreed? Yes, sir. However, buyer has unlimited profit. अब मैं प्रॉफिट इसको बोल रहा हूं बिकॉज आई विल जस्ट टेल यू, जस्ट यू नोट दिस डाउन, एंड सेलर हैज लिमिटेड प्रॉफिट। कैन यू सी द डिफरेंस? इंश्योरेंस का मॉडल सोचो आप, इंश्योरेंस के मॉडल में मैं लिमिटेड प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड लॉस बुक करने को तैयार हूं, समझ रहे हो? Yes, sir. मैं कोई एंटर करता है ऐसी डील में? नहीं करता है ना। कॉमन सेंस पूछो तो नहीं करेगा ना। Yes, sir. बट सारा गेम यहां पर इसका है। ये क्या है? P. व्हाट इज दिस P?
I wrote earlier. Probability. That's it. ये मैथमेटिकल मॉडल में जब लगता है तब ये कन्वर्ट होता है, और इसीलिए मार्केट चल रहा है, लोग पैसा बनाते हैं. एनीवे, वी विल नॉट गो इन दैट राइट नाउ लेट आई विल टेल यू मोर डिटेल्स. सपोज आपने एशियन पेंट खरीदा था ना 3149 पे, ठीक है. ये प्राइस था मान लो 30 दिन पहले, सम माइनस टी. आई कैन राइट टी माइनस, समझ जाते हो ना आप लोग, टी माइनस, टी लेस देन 0 पे, समझ जाते हो. इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है. और टी मोर देन 0 पे ये हो गया 2800 का. तो कितना लॉस हुआ आपको? कमान 359. ठीक है. ये लॉस हुआ ना इसमें, मैंने ये कहा ना इसमें लॉस हुआ ना, ये लॉस हो गया. बाहर में Yes, सर. sir. क्या कह रहे हैं? हेलो सर जो बायर ने लिया था। सर जो भाई नहीं, जो ये buy आपके किया पास, होता है उसको अभी मैं प्रीमियम की loss बात नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये स्टॉक खरीदा हुआ है, ठीक है, अभी इंश्योरेंस नहीं लिया आपने, ये आज ये प्राइस यहाँ पर हो गया, इतने का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हो गया sir. ना. अब देखो, Yes, sir. सपोज आपने इंश्योरेंस लिया होता 50 रुपए का, ठीक है, तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाती, यहां पर -50 तो आ ही जाता, बिकॉज 50 का लॉस हो गया है ना. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. लेकिन आपको यहां पर 2800 होने के बाद भी कितना लॉस और होता? 100. 159 का, Yes, सॉरी 100. 59 का, है कि नहीं? वो आपको कह रहा है कि दिस इज द अमाउंट यू हैव, दिस इज द अमाउंट यू पे. समझ रहे हो? क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया हुआ 3100, आपने कहा 3100 से नीचे जितना भी जाए उतना मेरा, बाकी वो सारा पैसा देगा. समझ रहे हो? गॉट इट? हेलो. Yes, sir. अब नाउ यू Yes, सी, sir. ये आपका टोटल है, दिस इज योर टोटल लॉस. ठीक है, ये टोटल लॉस है ना, स्टॉक और इंश्योरेंस मिला के. एग्रीड? हेलो. तो मतलब 3100 से नीचे जाए तो सारा पैसा देगा 50 रुपये अपना काट के. हाँ, ओके. ठीक है, समझ रहे हो? यस सर. Yes, तो sir. आपका लॉस इतना ही है ना, यस सर. ये टोटल लॉस है, और ये स्टॉक का लॉस है. तो प्रॉफिट कितना हुआ उससे? आपको जो प्रॉफिट हुआ या अवॉइडेड लॉस, प्रॉफिट फ्रॉम पुट, वो कितना हुआ? ये हुआ? यस सर. कैन यू से आपने 200 रुपए कमाए पुट से? कैन यू से दैट और नॉट? आइडियली यू हैव लॉस्ट, दैट इज सेपरेट, बट उस बंदे ने आपको 200 रुपए दिए ना, यहां लॉस हुआ. तो इसमें होता क्या है, मान लो ये आपका लॉस हुआ, लेकिन आपको इंश्योरेंस एजेंट इतना पैसा दे रहा है ना. यस सर. सम प्लेस इट इज रॉन्ग. रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है. सर 250 होगा सर. हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, समथिंग इज रॉन्ग. या नो, यस 250 होगा. हाँ, वही मैं सोच रहा था. ठीक है, तो ये पैसा आपको आया ना, 250 रुपीज बचा, आपको मिला ना. So this is the profit. Now we will come to again stock equation mathematically. और ये सब मैथ्स आपको YouTube वीडियो में लोग कम सिखाएंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. सो कैन वी से F1, F2, G1, G2 सब समझ में आता है ना, फंक्शन लैंग्वेज? Yes, sir. ठीक है. सो स्टॉक फंक्शन को बोलते हैं F1, विच इज इक्वल टू X. दैट्स इट. दिस इज द वैल्यू. सो अगर आपने खरीदा X1 पर और प्राइस हो गया X2, तो लॉस हो गया X2 माइनस X1. ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ. समझ गए? Yes, sir. दिस इज सिंपल स्टॉक. दिस इज वन फंक्शन.
That's it. Y is equal to x. Okay. However, when you talk of a put, ये पढ़ने में आ रहा है नहीं पढ़ने में आ रहा है? नो सर। नहीं. नो नहीं सर। सर। Suppose I say K is the level below which I am striking a deal. K is a level below which I am striking a deal. ठीक है? So I will say when x is less than K, y is equal to minus premium minus x plus K, and when x is more than K, y is equal to minus premium. समझ में आया ये? Are you able to understand this? Y is equal to minus premium minus x plus K. K क्या है? Strike level. X is equal to when x is more than K, y is equal to minus premium. समझ में आया ये? Understood? Hello? नो सर। भाई देखो, मैंने क्या बोला कि अगर एक लेवल है K, उसके नीचे अगर जाता है तो सारा लॉस कौन देगा मुझे? वो कवर अप करेगा बंदा. ठीक है? ठीक है? हेलो? Yes. यस सर। Yes, तो sir. आई विल गेट जितना दूर है, मतलब अगर इतना दूर जाता है, सो आई विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी x माइनस के. नहीं, अगर प्राइस यहाँ पहुँच जाता है x, ठीक है, तो मुझे वो कितने पैसे देगा? k माइनस एक्स देगा? देगा ना? यस तो सर। लेकिन देगा। देगा, लेकिन मैंने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है उसको, तो माइनस प्रीमियम भी कर दूं ना यहाँ से. सो अल्टीमेटली, समझ रहे हो? नो? यस और नो? नो सर सर। ये वाला समझ में नहीं आया। ये वाला? सर ये जो आपने प्रीमियम बताया था कि मतलब हाँ, K देखो, माइनस अभी मैंने क्या बोला, स्टॉक में क्या है, आपने अगर खरीदा मान लीजिए 100 रुपए का, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 100 रुपए हो गई. ठीक है? वो 200 रुपए चला गया, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 200 रुपए हो गई. सिंपल, इट्स अ सिंपल लीनियर फंक्शन. एग्रीड? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 अगर 100 पहुंच गया 400 पर, आपका पोर्टफोलियो 500 हो जाएगा या 200 हो जाएगा. नहीं ना, अगर एक स्टॉक है नो सर। तो y इक्वल टू x समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। नाउ आप इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अभी आप सिर्फ उस पे ध्यान दो, इंश्योरेंस पे, एंड यू आर अ बायर. तो हमने क्या कहा भाई, देख भाई, अगर x k के ऊपर रहता है, मतलब मेरे केस में 3100 था, सो भाई तू मेरा पैसा ले जा. कितना ले जा? माइनस प्रीमियम. माइनस होगा ना y, तो मेरा प्रॉफिट फंक्शन में क्या आएगा? माइनस प्रीमियम आएगा. एग्रीड? इफ आई बाय एन ऑप्शन ऑफ पुट and it is always above the value k which I have said, I will lose this much na, limited loss. Yes or no? यस Yes, sir. So limited Yes, loss yes. for all values of k to infinity. I should ideally write this way. From k to infinity, minus premium is the loss. That's it. Yes, sir. Agreed? But I said, मतलब he said, ठीक है, उसके बदले में मैं तुझे कुछ देता हूँ. मैं क्या देगा मुझे? वो जितना भी लॉस होगा के से नीचे, कितना लॉस हुआ यहाँ पर? के माइनस एक्स, के माइनस एक्स। वो मुझको देगा. सो ही विल प्रोवाइड मी के माइनस एक्स. एग्रीड? यस सर। Yes, sir. बट मैं ऑलरेडी प्रीमियम दे चुका हूँ ना उसको, वो तो मैंने Yes, दिया ही है sir, ना, yes, sir. तो ये भी तो आएगा. Agreed? So the function Yes. becomes like this. Now Yes. it becomes like this. Can you verify these equations? सर पूरा बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा कट रहा है साइड. ये दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर. दे रहा है। सर दिख रहा है। अब दिख रहा है?
कैन यू सी इट Yes, sir. करिए सर। ये k वैल्यू है. Does this equation satisfied by this graph or not? Check it out. Yes or no? देखना बताना. यस सर। Yes? Yes or no? यस सर। Now. Yes, sir. अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेते हैं, ठीक है? कैन यू रिपीट दैट? हेलो, कौन कुछ बोल रहा है क्या? सो नाउ आई विल राइट दिस प्रॉपरली. y is equal to premium minus x plus k if x is less than k and is equal to minus premium if x is more than k. Is this fine? Yes, sir. यस आप सर। ध्यान से देखो तो ग्राफ ऐसा बना था ना. ग्राफ वाज लाइक दिस. इज इट फाइन? 45 डिग्री बना देता हूँ इसको. वेट, वो पहले से ड्रॉ करके रखा था मैंने क्योंकि मुझे पता था जल्दबाजी में ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी टेंशन. कैन वी से जितना ये ऊपर जाएगा इन्फिनिटी उतना हमें प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ही है ना ये. Yes, यस सर। तो Yes, sir. दिस इज अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड दिस इज लिमिटेड लॉस. ओके, दिस इज फाइन. नाउ आपके पास दो चीजें हैं, एक ये है स्टॉक और एक ऑप्शन है. अब मुझे कंबाइंड फंक्शन ऑफ ऑप्शन प्लस स्टॉक बताओ. मुझे कंबाइंड फंक्शन बताओ ऑप्शन प्लस स्टॉक, x लेस देन k के लिए और x मोर देन k के लिए. चलो चलो बताओ. बहुत सिंपल है. कम ऑन. सर हेलो हाँ, सर, स्टॉक में सर प्रीमियम नहीं होता है ना सर? स्टॉक में क्या नहीं होता है? नहीं, प्रॉफिट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं, सर। profit- स्टॉक में, हाँ, स्टॉक में तो सर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना हम। अरे यार, अभी हम ट्रेडिंग पे नहीं जा रहे हैं. लेट्स नॉट गेट इनटू ट्रेडिंग. अभी हम मैथ्स पर हैं. स्टॉप लॉस इज अ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट. वी आर एट मैथ्स राइट नाउ. वन फंक्शन इज दिस, वन फंक्शन इज दिस. आई वांट टू गेट अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट और a plus b, y1 plus y2 or g1 plus g2, whatever you want to say. I hope I am talking in mathematical language which is not alien to you. Sir, y will be minus premium plus k if x is less than k. क्या होगा? टोटल बताओ ना. For this region, what will be y? Suppose, चलो let's put it this way. Suppose, let's come to this. Suppose आपने खरीदा था अल्फा प्राइस पे, स्टॉक में एंट्री मारी थी, ठीक है? Suppose you entered the stock in alpha market. Can we say your profit will be always this, y is equal to x minus alpha? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? I have to explain you that also, ना? सो ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये. इन दोनों का एडिशन करो. सिंपल. बताओ. व्हाट इज वाई? कम ऑन यार, मैथमेटिक्स और बीएचयू के टेंट्रस कर क्लियर करके आए हो. कम ऑन. मुझे बहुत उम्मीदें हैं. आई डो नॉट हैव दीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मैनेजमेंट गाइड, बट आई हैव फ्रॉम यू. बिकॉज उन्होंने सब लोग कह रहे थे सर वी आर नॉट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. व्हाट विल बी दिस व्हेन x लेस देन k? सर 2x इज इक्वल टू माइनस प्रीमियम प्लस के और प्लस अल्फा. माइनस अल्फा. माइनस और ये So वो माइनस प्रीमियम प्लस
x minus alpha. इसका मतलब हमने क्या किया, व्हाट हैव वी डन? अब मुझे मैथमेटिकली इसका सेंस बताओ। यहाँ पर k था, यहाँ पर x है, यहाँ पर k, हाँ ठीक है। हमने क्या किया है? हैवंट वी लिमिटेड आवर लॉसेस? कुछ भी हो जाए मार्केट को इस साइड में, हमको इतना ही लॉस होगा। Yes, sir. गिर जाए, Yes, sir. क्रैश होने दो मार्केट को। और अगर प्रॉफिट होता है तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा बस। पहले प्रॉफिट हो रहा था x माइनस अल्फा, अब हो रहा है x माइनस अल्फा माइनस प्रीमियम। एग्रीड? Yes, Yes. प्रॉफिट आपका प्रीमियम से कम हो गया, लेकिन लॉस तो सेव हो गया ना। Yes, sir. अब ये सोचो, ये कितने लोगों, कम लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में। अभी स्टॉप लॉस की बातें बाद में आऊंगा। कितने कम लोगों को पता है ये कितना पैसा डूबता है जस्ट बिकॉज दे डू नॉट नो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन थिंग, कि आप अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लिमिटेशन है, दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट। लेकिन सपोज आपके पास पड़े हुए 15 लाख के स्टॉक, एक कोई भी पड़ा हुआ है, उस पर अगर आप इफ यू इंश्योर मिनिमम लॉस, इजंट दैट सेटिस्फाइंग टू यू और नॉट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ एक मिनट पहले रुक जाओ। ये मैथ समझ में आ गई? पहले तो ये बताओ सबको, ये मैथ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब जिसने क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन पूछो। सर सपोज डेट मान लीजिए मतलब मार्केट जो है डाउन हो जाता है सडनली, हाँ। ठीक है, हाँ फिर मतलब कुछ एक या 2 मंथ के बाद फिर मार्केट में मतलब तेजी आ जाता है, मतलब मुझे प्रॉफिट होने लगता है। हाँ तो एक मिनट, हाँ प्रॉफिट होने लगता है, फिर जैसे सर मतलब लॉस हुआ, ठीक है, हाँ तो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं सपोज डेट मान लीजिए, तो वो मतलब शेयर मतलब बिक जाता है, ठीक है। हाँ ठीक। यार देखो, अभी तुम ट्रेडिंग पर आ रहे हो, पहले तुम्हें मैथ समझ में आई, मैं अभी आता हूँ इस कंसेप्ट पे स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ इस पे स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस के अलावा बाकी सब क्लियर है? ठीक है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग कि बहुत जगह ये ऑप्शन होता है, ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं धीरे धीरे, अब मैं एज ए ट्रेडर बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एल, ये हमारा फंक्शन हो गया। हाँ भाई, जो स्टॉप लॉस वाली बात कर रहा था, स्टॉक का ये फंक्शन होगा ना, अल्फा इज द एंट्री लेवल, x इज द करंट प्राइस एंड y इज द प्रॉफिट। इज दैट फाइन? यस सर। अब आपने कंप्यूटर को कहा इफ x लेस देन k, ठीक है, इफ x लेस देन k प्लीज सेल द स्टॉक। दैट इज ऑल यू विल डू ना? यस सर। यू विल डू दिस और नॉट, है ना? हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. तो क्या होगा, आपका स्टॉक बिक गया, आपका लॉस, आपने कहा कि सर हमारा लॉस हमने लिमिट कर दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब देखो स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज मार्केट ऐसे था, तुमने अल्फा पे एंट्री ली, यहां पे तुमने एंट्री ली और तुमने लगा दिया स्टॉप लॉस यहां। स्टॉप लॉस मतलब कि जैसे ही इस लेवल से नीचे आए आप बेच दीजिए, यही है ना? Sell out कितनी? है ना, यही है ना? Yes, sir. नाउ इफ इट कम्स नीचे, मान लो आज 1 घंटे वो नीचे आया, ठीक है, ओके, और फिर वो यूं चला गया, तुम्हारा लॉस कितना है? तुम्हारा लॉस कितना है? सर मेरा वो है एक्स माइनस अल्फा माइनस के ना। और अगर तुम ऑप्शन में होते तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता? प्रॉफिट होता कि लॉस में होते? Profit. Profit. That's the point. Stop loss makes you enter out of the portfolio. Stop loss अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे आता है, so stop loss is useless because you have exited here. Are you understanding?
यस सर। जिसने स्टॉप लॉस Yes, पूछा sir. मुझसे, समझ में आया? यस सर। फॉर अ वॉलेटाइल मार्केट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वॉलेटाइल मार्केट मतलब जिसका सिग्मा, सिग्मा समझना है सबको आता है ना, वेरिएंस। जब आपका वेरिएंस, इसका वेरिएंस बहुत हाई है तो वो तो ऐसे ऐसे करेगा ही। तुमने यहाँ एंट्री ली, ठीक है, और तुमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पे था, वो यहाँ गया नहीं, ये प्रॉफिट का लेवल था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, हिट हो गया और नीचे आया, तुमने कहा बड़ी अच्छी बात है, अच्छा वो मैंने बेच दिया, पता लगा वो ऊपर पहुंच गया। समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। इस बात को समझो कि देखो, अब तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में क्यों करते हैं, बिकॉज हम उस पर थोड़ा बाद में आएंगे, बिकॉज हर किसी को ये y इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस को समझ में नहीं आता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जिसको मैथ्स आती है, अगर ढंग से अप्लाई करे शेयर मार्केट में, ढंग से मतलब प्रॉपर मैथ्स, प्रोबेबिलिटी लगा लो के, ऐसे ही नहीं बतावा में इधर लगा दो उधर लगा दो, मॉडल बना के, बहुत आगे उसके पास वो है। अब इसमें एक इशू रहता है, वाई द स्टॉप लॉस इज नॉट फेमस, सॉरी वाई द ऑप्शन इज नॉट फेमस। अगर आपने एशियन पेंट्स का एक स्टॉक लिया, ठीक है, तो वो आपको कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कम से कम 50 स्टॉक लो तब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। एंड इट हैपन्स इन द मल्टीपल ऑफ 50s और 60s। इसे कहते हैं लॉट साइज, नाम वर्ड सुना होगा, लॉट साइज, ये नंबर। तो जो लॉट साइज होता है, तो देयरफॉर ट्रेडिंग के डोमेन में स्टॉप लॉस इज मोर फेमस बिकॉज यू कैन अप्लाई स्टॉप लॉस फॉर वन स्टॉक ऑल्सो, ठीक है, दैट्स इट। देयरफॉर आई सेड एसेट, अब यार 5000 का स्टॉक खरीदोगे, उसमें अगर तुम्हारे 5000 डूबे तो क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा ना, इसलिए यू विल पुट अ स्टॉप लॉस, ठीक है। कौन था भाई स्टॉप लॉस वाला? लेकिन अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का है और उसने ऐसे टर्न ले लिया, तुम्हारा तो भट्टा बैठ गया ना, यहाँ पर पूरा लॉस हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, स्टॉप लॉस? यस सर। Yes, sir. सॉरी, स्टॉप लॉस का नाम क्या है भाई? उसका नाम बोलो, मैं स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम? साकिब। साकिब, ओके। सो व्हेन योर पोर्टफोलियो इज वेरी लार्ज, और मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ ये तुम लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको अप्लाई करने का तरीका सिखाएंगे। पर्सनल लेवल पे यू कैन अप्लाई ओनली व्हेन यू विल हैव एटलीस्ट 2 lakhs इन योर अकाउंट, दैट वी विल टॉक लेटर कि मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस में कैसे लगाऊं। अभी हम पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल, 5 साल, 6 साल में तुम्हारे पास 2 लाख तुम्हारे पास हो ही जाएंगे, ये तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब उस पर हटो, उसको छोड़ दो। समझ में आ गया स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस फेमस क्यों है और स्टॉप लॉस की लिमिटेशन क्या है? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स असली वाला। असली वाला क्यों? ये तो मैंने सिर्फ मैथ्स बता दी, और ये बहुत तगड़ी मैथ्स है। इसी तरह कॉल का फंक्शन भी होता है, मैं कॉल की बात नहीं करूंगा बिकॉज कॉल का फंक्शन भी सिंपल होता है, वो तुम समझ जाओगे। इफ यू कैन टेक दिस इमेज, अगर तुम्हें दिखने में आ रहा है ठीक है, नहीं तो तुम्हें खुद डिराइव कर लेना, और नहीं तो मुझसे बाद में। हेलो, हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। सर कॉल और पुट में सर एक ये सर कमी होती है ना, मंथ के लास्ट में सर, मतलब मेरा मतलब 0 हो जाता है मतलब। हाँ तो सुनो, तो मैंने क्या कहा वो तो यार सुनो ना। जब मैंने कहा है अगर x इज मोर देन k, y इज इक्वल टू माइनस प्री, का मतलब क्या है? तुम्हारा पैसा गया। तुम ट्रेडिंग करते हो क्या? पहले तो ये बताओ, बिकॉज आई अज्यूम यू वर नॉट डूइंग। डू यू डू इट? यस सर, करता हूँ। पहले बोलते ना, मैं उसका असम्पशन लेता। एनीवेज उसको हम बाद में आएंगे। ये है, देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ऑन दिस डे। अब ये हर वैल्यू के लिए नहीं होगा। हमने कहा कि 3100, तो इसमें ये होता है, जैसे इंश्योरेंस में डेट होती है ना, 25 साल के अंदर अगर आपको कुछ हो गया, या 26 साल में अंदर कुछ आपको हो गया, ऐसा तो है नहीं, जिंदगी भर का होता है। तो इसी तरह इसमें ये होता है, आई विल टेक 31,000 फ्रॉम यू एंड पे लेस देन 31,000 इफ द प्राइस इज लेस देन 31,000 आफ्टर और एक्सपायरी। उसे एक्सपायरी कहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट।
मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इतने महीने के लिए वैलिड है, इतने दिनों के लिए, कुछ दिन के लिए होते हैं, कुछ महीनों के लिए होते हैं, कुछ सालों के लिए होते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब तुमने आज बेच दिया, तुमने कहा कि भाई देख मैंने 3129 में एशियन स्टॉक्स लिया, एशियन पेंट्स का, मुझे नहीं पता क्या होगा एक साल में, एक साल बाद अगर मेरा प्राइस 3100 से नीचे हुआ, एक साल बाद 12 महीने में, तो जितना नीचे जाएगा तू उतना देगा। वो कहता हाँ भाई दूंगा, मैं 50 नहीं कुछ और ले लूंगा, ठीक है? ओके, हेलो ऑप्शन ट्रेडर साकेत, ठीक है? तो अभी हम उस पर नहीं आएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लीज एक टाइम फ्रेम भी होता है, मैं उस पर आऊंगा धीरे धीरे। अब मैं कॉल की इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम लोग खुद समझ जाना, अपने आप कर लेना। कॉल ऑप्शन की इक्वेशन होती है ठीक है, ओके, इज दिस फाइन? जिसको किताब से पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है जॉन सी हल, ओके, इज दिस फाइन? यस सर। अब आप लोग का रोल कहाँ आता है? देखो अब समझो मैथ्स का काम, होता क्या है कि अगर आप देखिए जो आपका लाइफ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो आपकी एज पे डिपेंड करता है, यस, करंट एज, डज इट डिपेंड और नॉट? यस सर। यस सर। And it Yes, sir. also depends on the amount of time you want to buy or maturity time, यस सर। ठीक है, and the number of diseases or types of diseases, ठीक है, agreed? Agreed? Yes, sir. Agreed? यस सर, यस सर। ठीक है, Yes. तो इसको हम लोग लेट्स पुट इट दिस एज T, this as A and this as D. So the premium is a function of ATD. Is that fine? अब क्या फंक्शन है उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्या फंक्शन है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ओके? इज दिस क्लियर? यस सर। वेट, ठीक है, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा ये प्रीमियम इस पे डिपेंड करता है, और लेट्स पुट वन मोर फैक्टर, योर हेल्थ, तुम्हारी अभी करंट हेल्थ कैसी है, ठीक है, ये भी फैक्टर आएगा ना, एज भी है, हेल्थ भी कैसी है, किस डिजीज के लिए कवर मांग रहे हो, किस टाइम के लिए कवर मांग रहे हो, ठीक है, एग्रीड? उस बेस पे तुम्हारा प्रीमियम होगा। और एक चीज और, सॉरी, ठीक है, एक चीज और वो क्या होता है? फाइनल वैल्यू, मैच्योरिटी अमाउंट। So let us put it capital A. So premium is function of this. This is not a comprehensive model. This is I'm trying to make you understand. Does it depend on multiple things or not? यस सर। Now उसी तरह ये जो कॉल और पुट का प्राइस है ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स से। एक फर्क पड़ता है आपने किस लेवल पे एंट्री मारी है, किस लेवल पे आपने कॉन्ट्रैक्ट पुट किया है, मतलब दिस इज अ सिक्योरिटी लेवल। एट दिस लेवल मेरा सिक्योरिटी, जैसे हमारे में ये था 3100, ठीक है, इज दैट फाइन? यस सर। वेयर वी सेड कि हाँ इस लेवल पे हम लोग बचना चाहते हैं। नाउ अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन करंट वैल्यू। भाई अगर ये 2900 होगा जब तुम खरीद रहे हो तो सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे है कि नहीं?
हेलो, Yes. sir. so current value of the stock which is donated by S, ठीक है. Then टाइम टू एक्सपायरी, मतलब जैसे यहाँ पे टी होता है ना, जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी टाइम ये एज बढ़ती जाती है और मैच्योरिटी टाइम कम होता जाता है, प्रीमियम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसी तरह जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं, नियरनेस टू एक्सपायरी, इज इट फाइन? इज इट फाइन और नॉट? Yes. आई एम राइटिंग टू हर, अगर आप लोग 5 बजे के बाद ही बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, ठीक है. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग, मे बी कॉम्प्लेक्स बट इट इज इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट, ठीक है. तो द प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द सिक्योरिटी प्राइस विच वी कॉल एज स्ट्राइक, द स्टॉक प्राइस, द टाइम टू एक्सपायरी, ओके. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द वॉलेटिलिटी, जैसे अगर सिग्मा ज़्यादा होगा और ये सिग्मा ऐसे है, ठीक है, तो प्रीमियम किस में ज़्यादा होगा? क्योंकि आपने क्या कहा है, यू आर पुटिंग अ लेवल कि इस पे हिट करता है नहीं करता है, ठीक है, एंड दिस सिक्योरिटी लेवल, इसके ऊपर नीचे अगर ज़्यादा सिग्मा होगा तो इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये P का मतलब क्या है. ये दिस P इज इंक्लिनेशन और सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल बट इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी. अगर आपकी एज बढ़ती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी डिजीज होने की? Yes, sir. अगर आपकी डिजीज नंबर ऑफ डिजीज है तो आपने ज़्यादा कवर कर रखी है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है ना कोई हिट कर जाएगा तो प्रीमियम बढ़ेगा. आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्रीमियम बढ़ेगा. उसी तरह अगर आपकी वॉलेटिलिटी आता है, मार्केट कभी 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे या कभी 200 पॉइंट नीचे, देन ऑल्सो इट विल राइज, ओके, ठीक है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड देन देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज गवर्नमेंट कंट्रोल विच इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक रेट. मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसको अगर आप बैंक में रख देते कितना पैसा मिलता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम इसकी सबसे कम बात करते हैं. लेकिन व्हेन यू गो टू हायर लेवल ऑफ एनालिसिस देन यू कीप दिस आल्सो इन माइंड. समझ रहे हैं? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? किसी को लग रहा है बोर्ड तो बताओ, मैं तुम्हें फिर यूट्यूब पे दिखाऊं कि जो मैं करा रहा हूँ वो क्या है. लोग उसके वर्कशॉप के 25,000 50,000 रुपये लेते हैं बट वो फिर इस लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं. यू आर मैथमेटिशियन इसलिए मैं इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. हाँ भाई संकेत है, क्या नाम? साकेत, क्या नाम था भाई? साकिब सर. क्या? दानिश? साकिब साकिब साकिब. अच्छा साकिब. सो पॉइंट यही है जिसको आपको लग रहा है ना मैंने काफ़ी बता दिया कि नहीं बताया है. यस सर. अब सुनो इस बात को, अब हम मैथमेटिक्स में आते हैं. तो हुआ क्या? अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड मॉडल फिट? व्हाट इज मॉडल फिट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ मॉडल फिट? रिग्रेशन किया आप लोगों ने? हाँ सर, रिग्रेशन पढ़ा है. पढ़ना है, आज तक किया नहीं है? हम पढ़ा है. तो रिग्रेशन में मॉडल सुना है ना, दिस मॉडल इज बेटर, दैट मॉडल इज बेटर. कभी सुना है ये सब वर्ड? नहीं सुना है कि दिस मॉडल इज बेटर, दैट मॉडल इज बेटर, द मॉडल एक्यूरेसी इज 95%, 98%, 80%, 30%. तो हुआ क्या? ये कंसेप्ट जो हमने इक्वेशंस ड्रॉ करी y इक्वल टू एक्स माइनस प्रीमियम वाली, ठीक है, वो कंसेप्ट चल रहा था. अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट काम करता रहता है ऊपर नीचे, उसका प्राइस कुछ आता है, उसका प्राइस कुछ आता है, ठीक है. तो किसी ने कहा यार वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ, जो ये डेटा पॉइंट्स है, डेटा होगा ना आपके पास तो बहुत सारा,
आपके पास स्टॉक प्राइस रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास करंट प्राइस रहेगा, सॉरी करंट नहीं, स्ट्राइक प्राइस रहेगा, आपके पास परचेज प्राइस रहेगा, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स रहेंगे ना, है कि नहीं? हेलो सर थोड़ा ऊपर लिखिए। सर थोड़ा नीचे से लिखिए। अच्छा सॉरी। आपके पास कितना, आपका कितना स्ट्राइक है, मतलब कितनी सिक्योरिटी लेवल पे लिया है, अभी करंट स्टॉक प्राइस क्या है, आपने कितने प्राइस पे नोट लिया था, जो होता है वो सब दिखता है ना, इतने डेटा पॉइंट होते हैं ना, डेटा पॉइंट्स रहेंगे ना तुम्हारे पास, एक्सेल में प्लॉट करोगे तो 3D 4D बन जाएगा ना। यस यस तो होता क्या है, मैथमेटिशियंस का काम ये है, दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस, दे ट्राई टू प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस, मतलब समझ रहे हो, जैसे y इज इक्वल टू ई, क्या होता है नॉर्मल इक्वेशन की कर्व, एक्सपोनेंशियल, बताओ बताओ व्हाट इज नॉर्मल इक्वेशन कर्व, इक्वेशन मैथमेटिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नॉर्मल ग्राफ, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यस सर। व्हाट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, व्हाट इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। हाँ ठीक है, अरे बाबा नॉर्मल कोई गॉसियन, चलो छोड़ो, नॉर्मल की बताओ। हाँ बोलो डोंट रिमेम्बर। हाँ बाबा, सर, याद नहीं। यही तो गेम है, तुम लोग को इसलिए याद नहीं है बिकॉज तुम्हें ये नहीं पता है वो यूज़ कहाँ होती है, उसका यूज़ किताब से बाहर कहाँ होता है। कुछ याद आया? मैंने रफ लिखा हुआ है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। यस सर, यस यस सो हुआ क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या ट्राई करता है समझने की, कि सबकी हाइट अगर ऐसी है, अगर हमारे पास एज और हाइट है, ठीक है, इफ दिस इज एज सपोज x एंड दिस इज हाइट एज y, कैन वी मेक सम फॉर्मूला सो दैट वी कैन से कि हाँ भाई दिस ग्राफ, दिस डेटा फिट्स इन दिस पॉइंट, समझ रहे हो, दिस इज व्हाट नॉर्मल ग्राफ डज ना, yes or no? यस सर। So it is trying to provide, जो भी डेटा उसको एक कर्व देने की कोशिश कर रहा है, एक इक्वेशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर आपकी एज यहाँ पर है तो ये हाइट होगी, अगर एज यहाँ पर है तो ये हाइट होगी, तो मीन हाइट जो होती है वो इस एज की इतनी होती है, कुछ कहेगा ना ये सब ग्राफ से। यस उसी तरह अब मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, तुम लोग डर जाओगे, ब्लैक स्कोल्स मर्टन, ये इक्वेशन है, लोग सर्च कर सकते हैं, इन लोगों ने आपका प्रीमियम, सिग्मा, टाइम, एक्स मतलब के, सॉरी स्ट्राइक लेवल एंड स्टॉक प्राइस एंड आर, इन सबको बना के एक इक्वेशन लिखी है, ओके। हम उस पर नहीं जाएंगे, इट्स अ नोबल लेवल वर्क, यू कैन स्टडी ब्लैक स्कोल्स मॉडर्न मॉडल, ओके, हम इस पे नहीं जाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सपोज अब मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई तुमने एक इंश्योरेंस लिया, यू बॉट एन इंश्योरेंस, ठीक है, सुनो, तुम लोगों ने एक इंश्योरेंस खरीदा, लेट्स से उसका प्रीमियम है 5,000 रुपये पर साल, ठीक है, और वो इंश्योरेंस ये कहता है, लेट्स पुट इट दिस वे, अभी हम लोग उस पर जा रहे हैं, जिस बंदे के पास ये इंश्योरेंस होगा, लेट्स से गाड़ी का ही है, वैगनार का ही है, विच सेज कि वैगनार का क्या कहते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू इतनी है, एक्सीडेंट होता है इतने पैसे मिलेंगे, ओके, इट्स फाइन, वी आर टॉकिंग ऑफ कार, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ लाइफ राइट नाउ। कार का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस ही है, बट लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो हमने कार का कहा कि भाई कार के 5,000 रुपये देते हैं, हमारी कार को ना अभी ये लोग 2 साल हुए हैं, ठीक है, अगले साल 3 साल हो गए, तो आपको क्या लगता है प्रीमियम क्या हो जाएगा, प्रीमियम कम हो जाएगा ना। मेडिकल इंश्योरेंस अलग है, मेडिकल इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ता है बिकॉज उन्हें पता है कि आप जिंदा रहेंगे,
आपको जिंदा रखना है। कार में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कार का इंश्योरेंस कम होता रहता है। डू यू नो दैट और नॉट? डिफरेंस ये है, लाइफ इंश्योरेंस जो मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस की और मेडिकल इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ती है क्योंकि उनको एम है किसी भी हाल में जिंदा रखो। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें गाड़ी की वैल्यू होती है। जैसे तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू अभी 5,000 रुपए है, तो इसकी मार्केट वैल्यू है ना 5 लाख 10 लाख कुछ भी है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। लेकिन तुम लोग की जो लाइफ है वो तो इनफाइनाइट वैल्यू है ना। चाहे तुम गरीब हो चाहे तुम अमीर हो, लाइफ की वैल्यू तो नहीं कहेंगे ना ये आदमी इतने का बिक रहा है। नो सर। तो इसीलिए वहां पर इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ती है क्योंकि आपका मार्केट प्राइस हमेशा इनफाइनाइट रहता है। अब ये गाड़ी 5 लाख की है, 2 साल पहले आपने खरीदी थी मान लो 7 लाख की, अब 1 साल बाद ये हो गई है 4.5 लाख की, तो इंश्योरेंस वैल्यू तो कम हो जाएगी ना। इंश्योरेंस वैल्यू कम हो जाती है। अब उसमें भी 50 चीजें हैं सर। यू कैन से नहीं सर इंश्योरेंस वैल्यू कम हो रही है, गाड़ी ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, दैट्स फाइन, बट गाड़ी की वैल्यू है ना। हम लोग कभी भी इंश्योरेंस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। आप कभी भी गाड़ी का इंश्योरेंस खोलेंगे, इट विल नेवर बी मोर देन द मार्केट वैल्यू, बट लाइफ को हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट मार्केट वैल्यू। ओके, तो दिस वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, हेलो, इज इट फाइन? ये मान लो 4,000 रुपये का हो गया। ठीक है, अब आपने गाड़ी बेची मान लो किसी को कि यार मुझे गाड़ी रखनी नहीं है, यू कैन सेल योर इंश्योरेंस और नॉट? यू डोंट नो? चलो छोड़ो उसको। एक्चुअली यू आपकी ये इंश्योरेंस भी हम लोग बेच सकते हैं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस ही वैसे अदरवाइज। सो आपने कहा कि भैया कोई और गाड़ी ले ले, 4 साल की होने वाली है, तू मुझसे 3,000 में ले ले। सो जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस में यू आर बाउंड, यू डोंट एग्जिट। डू यू एग्जिट? डू यू कैन यू सेल द इंश्योरेंस यू हैव बॉट? नो ना, एवर। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो ये किसी और को बेच दो, नहीं। बट इन ऑप्शंस मार्केट यू कैन सेल दैट इंश्योरेंस टू समबडी एल्स। जैसे अब यहाँ पर गेम आएगा जो हमारे भाई साहब बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी मैं गाड़ी बेचूंगा तो गाड़ी और इंश्योरेंस साथ साथ चल रहा है, तो इंश्योरेंस भी बिकी गया मान लो। ठीक है, उसने कहा भाई मुझे दे दे पैसे, मैं कर लूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे आपने गाड़ी 4.5 लाख की हो गई, 4.5 लाख की मार्केट वैल्यू है, 3 साल बाद 4,000 आपने पैसे दिए, फिर आपने कहा कि यार मैं बेचना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि भाई इस साल का तो प्रीमियम मैंने पे कर दिया है, तू ऐसा कर मुझे इतने पैसे दे दे, ये प्रीमियम रख ले, अगली बार तू अपने आप रिन्यू करवा ले, और मार्केट गाड़ी की वैल्यू 4 लाख रुपए है। ठीक है, तो यू कैन इनडायरेक्टली सेल एन इंश्योरेंस ऑल्सो, यस और नो? यस और नो? यस सर। अब ये है असली गेम ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग वहां हो सकती है जहां पर यू कैन, अ बायर कैन सेल और एनीवन एंड अदर पीपल कैन सेल। इट्स नॉट दैट यू हैव टू बाय एंड यू हैव टू सेल। अब 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, वी विल नॉट गो इन दैट। सो क्या होता है, जैसे अभी आपने 3129 आपका एशियन का मार्केट है, एशियन पेंट्स का एस, आपने कहा कि मैं 3100 लेवल के स्ट्राइक प्राइस पे खरीदता हूँ। स्ट्राइक प्राइस मतलब सिक्योरिटी लेवल विच वी डिसाइडेड, और मैं 50 रुपये पे करूँगा प्रीमियम। ओके, इज दिस फाइन? समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर मैंने कहा कि मुझे जो टाइम है ना, मैं वो 12 महीने, मतलब मैं ये सिक्योरिटी 12 महीने बाद चेक करूँगा, उससे पहले बीच में कुछ भी होता रहे। सपोज आपका आज टाइम है टी, यू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, और टी 12 इधर है। ठीक है, अब उसके बीच में मार्केट कितना ही नीचे जाए ऊपर जाए उसने आपको मतलब नहीं है ज़्यादा। यू आर जस्ट कंसर्न व्हाट हैपन्स हियर। अगर इस दिन के से ऊपर है तो आपका लॉस हो गया थोड़ा सा, और के नीचे है तो वो भी हमने डिसाइड किया कि लॉस कैसे कम होता है। ठीक है, तो दिस इज द टाइम टू मैच्योरिटी कि इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस टाइम पर क्या ये प्राइस टच करेगा, दिस इज सिक्योरिटी पॉइंट। ओके, अब क्या हुआ, आपने तो खरीद लिया, ठीक है, और जैसे ही आपने खरीदा उसके 1 मिनट बाद, 1 मिनट या आधा मिनट लगा लो, मान ले प्राइस पहुंच गया 3100। व्हाट डू यू विल हैपन टू दिस प्रीमियम?
what you will think will happen to this premium. You have to understand the probability concept. We are paying for the probability of the event happening. What is the event? That K से नीचे जाएगा. So अगर वो 3100 पे आ गया तो what? This will go higher, lower, or what? Will not change. So will not change. ओके अब तो मैं समझ रहा हूँ. देखो अब लेट्स पुट इट दैट वे. अगर आज मैं सेलर हूँ, मैंने बेचा ए आदमी को 3129 लाइन पे जब प्राइस था 3100 का सिक्योरिटी लेवल 50 रुपये में 12 महीने का, ठीक है. अब बी आदमी आया है. जब बी आदमी आया है तब मेरा स्टॉक प्राइस इधर है, ठीक है, और वो भी मुझसे सिक्योरिटी मांग रहा है 3100 की. तो मैं उससे कम पैसे लूंगा, ज़्यादा पैसे लूंगा? More money. Now the point is, what is the incident? The incident is it should be less than K. ठीक है? And the stock is moving in this direction. The probability of this x less than K increases. Put का मतलब क्या है? P of x less than K. Then the profit will happen, or then the losses will start multiplying for the seller. समझ रहे हो? जब x लेस देन k होगा सेलर को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुट ऑप्शन से. हेलो भाई, आर यू लिसनिंग और इट्स गोइंग ओवरहेड? ओके, द पॉइंट इज, सो द सेलर को लॉस हो रहा है ना. अगर उसको लॉस हो रहा है तो आपसे प्रीमियम भी तो लेगा ज़्यादा. आपकी एज बढ़ रही है, so he will charge you much more than 50, let's say 60-80 rupees. Okay, understanding? ये समझ में आया क्यों? क्योंकि yes sir, premium is dependent on probability of the, higher the probability of the event, higher is the premium. That's it. Higher is the probability of the premium, higher the premium. Okay, समझ में आया? ये किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ज़्यादा होगा जितना उस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस की है. समझ रहे हो ना? तो पहले हमने बात करी थी, अगर हमने जो बात करी थी कि 5,000 रुपये लेगा 1000 आदमी से, ठीक है, और 25 लाख देगा, तो मतलब कि भाई उसको लग रहा है कि 2 लोग ही खराब होंगे. लेकिन अगर उसको लग रहा है कि भैया 2 लोग नहीं 5 लोग खराब होंगे, 6 लोग खराब होंगे, वो इसको बढ़ाएगा नहीं प्रीमियम को? यस सर. बढ़ाएगा ना. तो whenever the probability of event of security breach क्या है यहाँ पर? 3100 से नीचे आना will increase. Whenever the probability of security breach or insurance getting triggered मतलब seller को पैसे देने पड़ेंगे, ट्रिगर का मतलब ये है, then the person will charge more money. ठीक है, ये समझ में आया? यस सर. अब क्या हुआ कि यहाँ पर पर्सन ए और बी था, और यहाँ मैंने तुम्हें बोला कि सेलर बेच रहा हूँ, मैं सेलर हूँ, ठीक है. तो पहली डील हुई सेलर और ए के बीच में, दूसरी डील मैंने कहा सेलर और बी के बीच में. लेकिन यहाँ पर ए भाई साहब कहेंगे यार देख मैंने 50 रुपये का लिया था, ये 60 का हो गया है, ले मैं बी को बेच देता हूँ. Then A and B can also have the deal, and this is option trading. He initially bought. The moment he saw the premium has increased because the probability has increased, hence he immediately paid. समझ रहे हो? Yes or no? यस सर. So this is option trading. है वैसे ही स्टॉक की तरह, but linear नहीं है. That's the point. It's not y is equal to x minus alpha. It's not linear. हम उस पर आएंगे ग्रेजुअली, और आप लोग चाहें अपनी मैडम से बोल सकते हैं आई कैन होल्ड रेगुलर क्लासेस फॉर दिस कोर्स, ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स बेसिक्स के लिए यू कैन रिक्वेस्ट हर, ठीक है. अभी मैं आपको इतना बता के रोक रहा हूँ. ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके, दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग वेयर यू बाय अ इंश्योरेंस, ठीक है, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीज यू सेल, ठीक है, and you make profit. Okay, hello,
यस सर। नाउ Yes, sir. ध्यान से सुनो, तुम कहोगे सर ये कौन करता है? देखो पहले हमने क्या कहा था कि आपके पास स्टॉक है जिसका इक्वेशन ये है, ठीक है, ये है, ओके, और फिर हमने ये कहा था देन यू बाय अ पुट ऑप्शन, ओके, y is equal to minus premium minus x plus k and y is equal to minus premium, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जितना मार्केट नीचे गिर रहा है उतना लॉस हो रहा है ना, यस और नो? जितना और इसमें Yes, sir. मार्केट गिर रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो बराबर है। सपोज मेरे पास ये नहीं होता, तो अगर मैं ये खरीदता तो मैं प्रॉफिट कब बनाता? जब x लेस देन k होता। समझ रहे हो? यहां पे खूबसूरती ट्रेडिंग की आती है। पहले जो ऑप्शन था वो इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा था ना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यस सर। यू हैड एन एसेट, एसेट था ये आपका y is equal to x minus alpha and hence this was insurance. Now when you don't have that, it becomes a speculative trading. Speculative को मैं नहीं वर्ड करूंगा, it becomes a trading where you are expecting that if you have bought a put option, market will fall as I fallen here, hence the premium will increase. The moment premium will increase, I will sell. समझ आया? ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना साकिब, यही करते हो ना तुम? सर फ्यूचर ऑप्शन नहीं करता हूँ, लेकिन होल्डिंग सर करता हूँ। कोशिश करते हो समझने की। So anyways, this is the way, okay? Now I will take to some practical things. अभी किसी को कहाँ क्लास पूछना है नहीं पूछना है? I have told you what is option trading. जिस तरह पुट ऑप्शन होता है, पीपल खरीदते हैं जब वैल्यूज गोज डाउन, एंड कॉल ऑप्शन होता है, so people think the value will go up. That's it. That is trading. It was an insurance instrument. It has become a trading commodity now. ट्रेडिंग मतलब आज खरीदा कल बेचा या हफ्ते भर बाद बेचा, जो भी जैसा भी है, ठीक है? समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? बिकॉज नाउ आई विल गो टू कंप्यूटर, ओके? ओके और नॉट? यस सर। चलो मैं तुमसे एक और चीज़ फिर से पूछ लेता हूँ। ज़्यादा हो रहा है क्या भाई? आई एम टेलिंग यू अ वे विच इफ़ यू लर्न द मैथमेटिक्स यू कैन बिकम योर सेल्फ सस्टेनेबल। जस्ट 3-4 लाख रुपए हो, घुमाना आता हो मैथमेटिक्स लगा के। तो अब मैं तुमसे एक और चीज़ पूछता हूँ। ये है स्टॉक प्राइस, ये है के, ये है प्रीमियम, ये है टाइम। तो आपने 3159 का प्राइस पे 3100 लेवल का 50 रुपये दिए 12 महीने, ठीक है? मान लो ये 12 महीने आगे का दिया। अब सेम प्राइस है लेकिन आप 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट में आ दो, विल यू पे हायर प्राइस और लेस प्राइस? हायर लेस और हाई? ध्यान से सोचो, आपने टाइम कम कर दिया तो प्रोबेबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. इसमें less हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कम हो गई तो उसका प्राइस हो जाएगा समथिंग प्लस 48। बिकॉज भाई सिंपल सा है, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई मैं तुम्हें 5 महीने देता हूँ वजन घटाने के लिए 100 किलो, 100 में से 80 करो, और मैं तुम्हें 3 महीने कहता हूँ, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हिट होने की? 5 महीने की, 3 महीने की? कैन यू रिपीट दैट? Sir, 5 months. हाँ, so therefore more the time, more the probability, because you are allowing for uncertainty, you are giving more time. जैसे आज 3159 है 12:02 पे, ठीक है? और वो कहता है यार 1 घंटे बाद 3100 का प्राइस कुछ होगा तो तू मेरे पैसे दे देगा। तो कहेगा ठीक है ला यार 4 रुपये दे, मैं 4 रुपये लूँगा ना, वो थोड़ा ना मुझे 50 रुपये देगा। कह रहा है 1 घंटे में तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है 4 रुपये ले लूँ मेरे। समझ रहे हो? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन time to expiry. It also depends on stock, and we have talked about this and sigma. So ये practical चीज़ें हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मशीन पर।
तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं कि मार्केट बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम के अंदर नहीं गिरता है जिस टाइम में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। ओके, आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एंड एप्लीकेबल? सीरियसली बताओ सर, टाइम कम हुआ तो प्रीमियम कम कैसे हो गया, तो बता रहे। यार देखो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा तुमसे है, देखो भाई, तुम्हें ना 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 6 महीने में, और तुम्हें 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 3 महीने में। वेयर डू यू थिंक हायर प्रोबेबिलिटी कि तुम पढ़ पाओगे? 6 महीने 6 महीने, बिकॉज यू हैव मोर टाइम। उसी तरह जब हम टाइम कम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कम इसलिए होती है कि अब हमें आपको कम टाइम दे रहे हैं। जैसे मैं आज बोलूँ यार 1 लाख, अगर मैं 1 साल बाद मर जाऊंगा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बड़ा पंगा होता है बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यू, उसको हम बात नहीं करेंगे। स्टॉक अगर आज 100 रुपये पे है तो क्या वो कल, क्या 1 मिनट में 200 पहुंच सकता है? कुछ प्रोबेबिलिटी है, कम है ना। लेट्स टेक इट ए, ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए। 100 से 100 रुपये, 100 से 200 रुपये विद इन 2 आवर्स, दिस इज पी ए। और 100 से दिस इज 200 रुपये बट 2 years, and this is PB. What do you think? PA will be higher or PB will be higher? सर इसमें से पी हाई होगा सर, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो PB will be higher than PA, ठीक है? तो क्या हुआ, टाइम कम हुआ, प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना। प्रोबेबिलिटी कम हो गई तो हमारा प्रीमियम कम हो गया। समझ रहे हो ना? नहीं यस भाई, गेम यही तो है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए वो प्रीमियम कम हो रहा है, तभी तो वो बेच रहा है। देखो बात ये है कि 3100 कभी ना कभी तो पहुंचेगा ना जिंदगी में, पहुंचेगा ना। मैं एज अ सेलर कह रहा हूँ यार 1 साल में शायद प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए बेच देता हूँ। अगर वो मुझसे 2 साल कहता है तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, और कि पता है मेरे 2 साल में ज़्यादा चांसेस हैं। वो कहता है 1 दिन तो मैं थोड़ा कम पैसे लूँगा। समझ रहे हो ना? ओके ओके सर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो अभी ये मैथमेटिक्स है बहुत तगड़ी। यहाँ पर आप जो ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, मर्टन मॉडल, वो जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा सब। अच्छा, आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग और नॉट? लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। थोड़ा हाई फाई लग रहा होगा, किताब से बाहर है लेकिन प्रैक्टिकल है। सर इंटरेस्टिंग है। अब देखो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ इंटरनेट पे, असली चीज़ों पे, जो तुम्हें लग रहा है कि इसका यूज़ करें और मैं इसको कैसे करता हूँ। और ये मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट आपको मेरे जगह कुछ काम करना पड़ेगा, प्रोग्राम जो भी है। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अभी डरना मत, सबको मत पढ़ना, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ना। जैसे हमने एशियन पेंट्स लिया था, यहाँ पर हम ले रहे हैं निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी, ओके। डोंट आस्क एवरीथिंग, जस्ट फोकस व्हाट आई एम सेइंग, डोंट गेट इनटू एवरीथिंग। दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ द निफ्टी 50, 1568.85। इज दैट क्लियर? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर नहीं है, सॉरी, तो क्या शेयर है? बोर्ड शो हो रही है। अब दिख रहा है? यस। तो अभी Yes, sir. मान लो ये है निफ्टी का प्राइस, मतलब एशियन पेंट्स के लिए निफ्टी मान लो। अब निफ्टी क्या होता है उसे बाद में जाएंगे। दिस इज निफ्टी का प्राइस, इज इट फाइन? ठीक है, करंट प्राइस जैसे एशियन पेंट्स का था 3129, वी टुक इट दैट एग्जांपल, ओके। नाउ दिस इज द स्ट्राइक और दिस इज सिक्योरिटी लेवल। जो के कह रहे थे ना, के, जो हम के कह रहे थे वो के ये है, ठीक है, ओके। ये स्ट्राइक प्राइस को के कह रहे थे, सिक्योरिटी लेवल, ओके।
x less than k, x more than k. We were saying that ways, yes or no? Yes or no? Yes, sir. तो ये हो गया स्ट्राइक। तब मैं कंफ्यूज मत हो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। नाउ इसका लॉट साइज है 50, उसको भी तुम भूल जाओ, मैं बता देता हूँ किसी को खरीदने का शौक हो तो। नाउ हियर यू सी एज दिस इज द कॉल साइड एंड दिस इज द पुट साइड। अब हमने क्या कहा था, जितना प्राइस लोअर होगा ओके, लेट्स कम इट। यहाँ पर ये रहा LTP। पहले तो आप ये देखिए, ये है 6550 नियरेस्ट मल्टीपल 50। ये कितने का है? 98 रुपए का है, दिख रहा है LTP 98 रुपए। Yes, sir. और ये कब का है? 26 अगस्त के लिए। अब मैं टाइम बढ़ाता हूँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करंटली द मार्केट इज हियर, आई एम रेडी टू पे 98 rupees. If market goes below this, the seller will provide me all money. Is that clear? ठीक है, मैं भाई यही कह रहा हूँ ना मैं। This is what I am saying. I am ready to pay 98 rupees if market crosses below this level after this date. Okay? Yes? Yes or no? Yes, sir. Now somebody said नहीं यार, चलो 2 महीने बाद ठीक सकते हैं। अब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रीमियम बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो बढ़ेगा सर। अब ये देखिए कितना हो गया, 232। Yes, sir. और अगर हम टाइम कम करें, आज का देखते हैं, मतलब आज का चलो छोड़ो, 2 सितंबर का देखो, तो 232 से कम होगा, लेकिन 98 से ज़्यादा होगा। 98 से ज़्यादा है तो उससे कम है। ओके, तो ये टाइम वाला काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये सारी चीज़ें भी काम करती है दोनों साइड। तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ ऑप्शन चेंज। इसको आप लोग समझ सकते हैं, अगर समझना हो ऑप्शन चेंज, इसको यूट्यूब में पढ़ना हो, ठीक है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। व्हाट आई हैव डन, आई विल शो यू। आपको मैं कैमरे में दिखाता हूँ। और ये बहुत तगड़ी इक्वेशन है। देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये मैथ्स लग रहा है तुमने ऐसा कुछ पढ़ा है आज तक? n इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रल, लॉग नॉर्मल फंक्शन, उसको छोड़ो। ये कुछ फंक्शन है, ठीक है। लेट्स सी दिस इज द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द करंट स्टॉक प्राइस, ठीक है, आवर सिक्योरिटी लेवल, आवर टाइम एंड द वॉलेटिलिटी। हमने ये सब बात करी थी। हेलो, Yes, sir. so now Yes, sir. I am using this equation, differentiating it, because when I say to you price will decrease and time will decrease, so you have to understand, जैसे मैंने बताया, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ेगा, यस, ठीक है। I told you that, है ना। यस सर। और एक्सपायरी नीचे उतरी क्या तो प्रीमियम कम हो जाता है, यस, यस और नो। मैंने बताया Yes, sir. अब दोनों साथ में हुए तो एक दिन बाद प्राइस कम हो गया, अब प्रीमियम बढ़ेगा कि घटेगा? यू डोंट नो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल इफेक्ट। व्हाट डज पार्शियल इफेक्ट मीन? पार्शियल डेरिवेटिव, इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल इन टू। समझ रहे हो ना? नो, यस, हियर कम्स यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई बोल दो। देखो तुम एक बार लोग फिर से। मैथ्स के बंदे हो, यही सब पढ़ोगे मेरे ख्याल से आगे भी, समझ रहे हो? Sir, please repeat once again. I said to you earlier that if the price decreases in the case I took, the premium will increase of the put option. यस सर। And I also Yes, sir. said if the contract limit decreases,
then the price will decrease. Yes or no? Yes, sir. What if it happens simultaneously? प्राइस भी बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट भी कम हो रही है, तो प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? यू कांट मेक इट आउट, है ना? कैन यू? यू डोंट नो, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, यू डोंट नो ना? कैन यू? डोंट नो सर. तो यहाँ पर आता है मैथमेटिक्स. डू यू अंडरस्टैंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज डेल्टा प्राइस बाय डेल्टा टी, एंड यू अंडरस्टैंड डेल्टा प्राइस बाय डेल्टा स्टॉक, ठीक है? एंड देन यू गो अहेड. So depending on that, then you go ahead. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Then and only then, यहाँ पर you have an edge because you can understand partial derivatives. Otherwise option trading में अगर साकिब से पूछो, अच्छे को धुएं निकल जाते हैं, अच्छे को धुएं निकलते हैं, और इसीलिए अच्छे का 25,000-50,000 लेते हैं. मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बेसिक पढ़ाते हैं वो लोग 50,000 रुपये, 25,000 रुपये. तुम लोग के पास एडवांटेज है बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. एनी सॉफ्टवेयर यू नो मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर पता है आपको? मैटलैब. मैटलैब, गुड, ठीक है. सो नाउ वी विल यूज सॉफ्टवेयर्स टू कंप्यूट ऑल दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. अब पॉइंट ये है कि ये तो मैंने आपको दे दिया दक्षिणा, मतलब ज्ञान, और पैसे तो मैं ले नहीं रहा हूँ. Why I am teaching you? First, my intent is, if I would have known this in class 12, मुझे अगर ये पता होता ना 12वीं क्लास में ये वाला मैथ्स, ये ऐसा कुछ होता है, मैं यही करता जिंदगी में, क्योंकि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है. इज इट नॉट? इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स. मेरे को डेल्टा समझना है, मुझे डू यू अंडरस्टैंड ना दैट स्पीड कैन इंक्रीज? लेट मी आस्क यू, कैन स्पीड इंक्रीज, sorry, can distance travel will increase, is acceleration zero or not, or negative? So please repeat, voice was not clear. Okay, if you are driving a car, okay, and suppose आपकी गाड़ी चल रही है, your distance travel is x, your dx by dt is speed, and your second derivative of x is acceleration. इतना पता है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Now I am asking to you, suppose x is the distance traveled and you are interested in that, and suppose आपकी गाड़ी का acceleration negative है, do you think the car will still move ahead or not? Yeah, it will do some retardation. No, it will move to some point. After that, it will retard. Yes, then stop. That's Yes, the sir. point. That is the point. It will go till that point. So अगर हम उस सिक्योरिटी लेवल को समझ पाएं कि यार ये इस सिक्योरिटी लेवल क्या है, इस पॉइंट डिस्टेंस ट्रैवल ही हुआ, वी आर इंश्योरिंग कि वी विल ट्रैवल बाय दिस डिस्टेंस x, कैन आवर x क्रॉस विद इन दिस टाइम फ्रेम. So therefore this understanding of derivations or third derivative, second derivative, first derivative, that's it. It's very useful and you can think in these lines. Otherwise you will just be a theoretical mathematician, I'm telling you. Theoretical mathematician used by corporates. They will say T test करो, Z test करो, ये करो, वो करो, that's it. समझ रहे हो? बुरा मत मानना. वैसे कैसी जॉब लगती हैं आप लोगों की? Let's put it that way. हेलो, नहीं लगती क्या? हेलो, नहीं लगती? What, sir? What sort of jobs you get after graduation? Graduation. If it is a BTech, then आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, बीएससी कर रहे हो ना? नहीं No, sir, MSc. MSc. एमएससी थर्ड सेमेस्टर, सॉरी आई थॉट बीएससी. तो कैसी जॉब लगती है आपकी? In data analyst. हाँ, तो देखो पॉइंट ये है, देखो यार, तुम डाटा एनालिस्ट तो जो भी हो, तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दिमाग लगा रहे हो ना? ये ऐसी चीज़ है जो सीखोगे. मैं इसमें बताता हूँ कैसे. आप देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. यू माइट बी थिंकिंग सर क्या बकवास कर रहे हैं. लेट मी शो. अभी आप लोगों को 5 बजे शार्प तो नहीं भागना है ना? पहले बता दो, नहीं तो मैं उसके अकॉर्डिंग रैप अप करूँगा. No, sir. We are free. ठीक, मैडम को मैंने बोल दिया. मैं आर यूज़ करता हूँ, आप लोग मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू डू दैट. ओके,
अभी सॉफ्टवेयर आर से सर करे सर, आर तो ओपन सोर्स है। क्या कह रहे हैं? आर ओपन सोर्स है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मैथ लैब हम लोग के पास है नहीं। अरे यार तभी तो आर यूज कर रहा हूँ मैं। आर ओपन सोर्स का मतलब ही एवरीबडी कैन यूज इट। मैटलैब से आगे बढ़ो। सर पाइथन में नहीं हो सकता क्या? यार पाइथन इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। पाइथन और आर में फर्क नहीं है, बट आई यूज आर। अरे यार आप आर में करो, सी प्लस प्लस में करो, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिका में करो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुमको? तुम्हें जिसमें करना है करो। x इक्वल टू 2 हर कैलकुलेटर में x इक्वल टू मतलब x प्लस जो भी तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व तो हो ही जाती है ना, समझ रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। मैथ यूज कर रहे हो, डेल यूज कर रहे हो, मुझे क्या मतलब है? यूज करना है करो। आई एम लर्निंग दिस, दैट्स ऑल आई कैन डू। इफ यू कम टू लर्न टू मी, आई विल डू दिस वे। मैं तुम्हें पाइथन नहीं सिखा पाऊंगा, आती है मुझे पाइथन, पर इतनी हाई लेवल की नहीं। एनीवेज, कमिंग बैक, so I have written so many codes. Let me show you how many codes I have written. अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो तुम लोग बाउंसर हो जाएगा। ये सारे मैंने कोड लिखे हैं, डेरिवेशन करी है, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है। एक्सेल फाइल, CSV फाइल, यू नेम इट, आई हैव डन इट। ठीक है, समझ रहे हो? अब जैसे आज का मेरा पोर्टफोलियो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। आई बॉट अ स्ट्राइक प्राइस 1550, ठीक है, दिस इज माई के। ओके, लिसन, दिख रहा है ये? नहीं दिख रहा है? Yes, sir. I bought a strike price at this, and I said I am buying at 68 rupees. लेकिन मेरे खरीदते ही मार्केट थोड़ा गिरा, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया 69 rupees. So I am in 50 rupees profit. Okay. Now there are multiple ways how to manage that. So मैं theoretically बात नहीं कर रहा, practically I do option trading. बट आई डोंट डू द ऑप्शन ट्रेडिंग जो नेट पे आता है, खरीदो बेचो। आई डू मैथमेटिकल ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो मैथमेटिक बनाया है, लेट मी गो टू माय पोर्टफोलियो। ये वेबसाइट पर है, मैंने कंप्यूटर पे बनाया है। ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना 16,500, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। ये वही है जो मैंने खरीदा है, सॉरी 500, ये वाला, ठीक है। उसी तरह मैंने सारी पूरी कैलकुलेशन करी है, एंड आई ऑल डू ये दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। होता है ना, हर किसी की वैल्यू आएगी ना। इतने सारे तुम्हारे जो फॉर्मूले हैं ब्लैक-स्पोर्ट्स मॉडल के, तो मल्टीपल पार्शियल डेरिवेटिव होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो सबकी वैल्यू होगी। अब सबकी वैल्यू होगी तो सबका वो भी देखना पड़ेगा, कौन कितना इम्पैक्ट करता है, कैसे करता है, क्या करता है, समझ रहे हो? अब इन सबके मैंने ग्राफ भी बनाए हैं, मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर ज़्यादा तो दिखाई देता हूँ, इतना क्या अपना बोली, तुम्हें समझ में आएगा नहीं आएगा, आई डोंट थिंक, बट लेट मी जस्ट शो यू। आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग you might not understand, not an issue, but I have done, that's what I'm trying to tell you. ये मैंने पूरा आधा कोड लिखा है, ठीक है, तो मुझे आर भी आता है। सीखा है मैंने ये सब 3 महीने में, पता है तुम्हें? इन गर्मियों में सीखा ये सब मैंने। वाई? बिकॉज मुझे लगा जो मैंने मैथ सीखा उसका मैं कहीं तो यूज करूं, सिर्फ जॉब लेके मैं ज़रा काम करूंगा। अभी रुको, दिस इज पैकेज गोइंग ऑन, वेट, जस्ट वेट, आई विल शो यू। और मेरा प्लान है कंपनी खोलने का इसमें, बट आई नीड पीपल, बिकॉज होता क्या है ना, क्लासेस चलती रहती है, वो सब चलता रहता है, एंड आई नीड मल्टीपल टेस्टर। जो 3 महीने में है वो एक्चुअली 3 हफ्ते का काम है, लेकिन मेरे पास बैंडविड्थ नहीं होती, इसलिए धीरे होता है। हेलो सर। हाँ बोलो सर बोल रहा हूँ सर। अभी रुक जाओ।
अभी एक मिनट, लेट मी आंसर, लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डन। ये जो पूरा कंप्यूटेशन वो कर रहा है ना हमारा बंदा, क्या कहते हैं, वेबसाइट, ये मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ रहा है ना गामा डेल, ये डेल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डेल लिखा हुआ है, डेल्टा, ये डेल है, ये लिखा है थीटा, ये थीटा है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन ठीक है डिस्प्ले अच्छा नहीं आता बिकॉज मुझे ग्राफिक्स नहीं आते हैं, तो मैं कमांड लाइन इंटरफेस में करता हूँ, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड द मैथ। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ बिकॉज इस चीज़ को पूरा समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट या क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू डू। आप लोग चैट पर हो ना अभी? हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Is the chat working or not? Can you see my message? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So मेरा ये ईमेल एड्रेस है, मैं जो लिख रहा हूँ नीचे, और ये आपको SMS DHP मिल जाएगा, और ये मेरा फ़ोन नंबर है। व्हाट्सएप मत करना, इस नंबर पे टेलीग्राम करना अगर करना तो, ठीक है। एनीवेज, सो द पॉइंट इज नाउ if you want to work with me, these are the ways you can work, and there are lots of works, वेबसाइट से लेके सब कुछ। अब तुम लोग पूछो क्या पूछना है। हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे हैं? सर इलेक्टिव कोर्स हम लोग का कंप्यूटेशनल रहेगा पूरा, ये सब थ्योरेटिकल भी है। यार ये कोर्स नहीं है तुम्हारा, प्लीज अंडरस्टैंड। इलेक्टिव नो 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 Elective नो, course। ये इलेक्टिव कोर्स जो है, अब सुनो सुनो, अब देखो यार, मैं अभी BHU में नया हूँ, मुझे 1.5 साल हुआ है, मुझे ये नहीं पता क्या डिपार्टमेंट के बाहर का बंदा इलेक्टिव कोर्स दे सकता नहीं दे सकता है। पहली बात, अगर दे सकता है तो मैं ये कोर्स फ्लोट कर दूंगा। तो तुम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोग को कोर्स में डालने के लिए, ग्रेड बांटने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आया था, समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. तो अगर आपको लगता है और आपकी मैडम को लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है उसका एक कोर्स होना चाहिए, उसका एक इलेक्टिव कोर्स होना चाहिए, वो मैं बना दूंगा। सर ये इलेक्टिव कोर्स है हमारे यहाँ, बट इस बार रन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कोर्स है? कोर्स का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स नाम से ही है। हाँ, तो देखो पॉइंट ये, सुनो 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 सुनो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो कोर्स है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सिर्फ डेरिवेटिव ऑप्शन नहीं होते, 50 चीज़ें होती हैं, बट आई कैन टीच द कंप्लीट कोर्स ग्रेजुअली, ठीक है। मैंने एक बहुत छोटा सेक्शन लिया था, ऐसे होता है ना मैथमेटिक्स में, आपका ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, एक चैप्टर लिया, उसका मैं तुम्हें एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ओके। तो अगर तो तुम्हारी मैडम कहते हैं, तुम्हारे डीन कहते हैं कि हाँ भाई आप इलेक्टिव ले सकते हैं बच्चों के लिए, आई एम रेडी फॉर दैट, ओके। और तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो जो भी है, ठीक है, बिकॉज देखो मैं BHU का हूँ, तो मुझे इतनी वो नहीं पता है कि भाई इलेक्टिव में तुम लोग कितने ओपन हो, क्या मैं बाहर का बंदा पढ़ा सकता हूँ? नहीं, आई एम, लेट मी वेरी फ्रैंक, आई नो वेयर आई एम इग्नोरेंट। तुम लोग अगर चाहते हो तो बात कर लो, मैं ही मैडम से बात कर लूँगा, ओके। That's one thing that is regarding course. Now coming back to practical thing, अगर किसी को कोडिंग करनी है, किसी को इस डोमेन में काम करना है, किसी को इस डोमेन में प्रोग्रामिंग करनी है, इस डोमेन में अपनी मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो मेरे साथ आ सकता है, मुझे ईमेल या फ़ोन कर सकता है। और जो इंटर्नशिप की बात वो ये है, वो इंटर्नशिप की बात ऐसी है कि अगर आप इंटर्नशिप पे आते हैं देन वी हैव टू बी फॉर्मल, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करूंगा, समझ रहे हो ना इंटर्नशिप का मतलब क्या है? आई विल गिव यू मनी एंड आई विल आस्क वर्क, बट अगर इंटर्नशिप नहीं है देन आई विल टीच यू फर्स्ट एंड देन वी विल वर्क टुगेदर,
और अगर इंटर्नशिप की मोड में आता है, आई विल से दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट यू शुड हैव, आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। आई विल टेस्ट यू, आई विल टेस्ट योर मैथ्स ऑल्सो, आई विल टेस्ट योर डेरिवेटिव पावर, लेबनिस आता है कि नहीं आता है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स समझ रहे हो ये सब, आई विल टेक अ टेस्ट। तो अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, अभी मैं हूँ आई नीड मोर पीपल हु आर रेडी विद द स्पिरिट ऑफ अप्लाइंग व्हाट दे हैव लर्न इन पास्ट और इन फ्यूचर। बीएससी मैथमेटिक्स किया ही होगा आपने, यस मैथमेटिक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको नॉर्मल कर्व नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी टू द होल क्लास, अगर आपको नॉर्मल ग्राफ की इक्वेशन नहीं आती तो मैं आपको बीएससी मैथमेटिक्स नहीं मानता। आई एम सॉरी, बुरा तो नहीं लगा? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने तो प्रैक्टिकली यूज नहीं किया ना, दैट्स इट। और आपको उसका यूज दिखा नहीं, दैट्स द पॉइंट। समझ रहे हो ना? तो मैं पूरी एजुकेशन सिस्टम को जानता हूँ, ये नॉर्मल ग्राफ मैंने ही पढ़ा था लेकिन एमबीए ने मुझे याद नहीं था, लेकिन जब मैं स्टैट्स पढ़ने लगा और मुझे उसका यूज देखने लगा। फ्रांसिस गैल्टन का नाम सुना है आपने? फ्रांसिस गैल्टन, तुमने गैल्टन का नाम नहीं सुना? वाओ, जिसने वो बनाया था, रैंडम बोर्ड बनाया था यार, कम ऑन, आई एम सरप्राइज्ड। फ्रांसिस गैल्टन बोर्ड ऑफ, या ये देखा है कभी? नहीं देखा? ये ग्राफ देखा है कभी? ये फ्रांसिस गैल्टन बोर्ड होता है जो बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पे? यस फ्रांसिस गैल्टन बोर्ड बताता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे बनता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन देता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनता है। उसने ये जो मशीन, ये गेम देखा ना बच्चों का, देखा कि नहीं देखा है ऐसा? यस सर। तो वो देखो पूरी मैथ्स पे लगा हुआ है, ये पूरी मैथ्स से बना हुआ है, ये फ्रांसिस गैल्टन बोर्ड। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मे बी आई रेड टू मच, बट ठीक है, लीव दैट अपार्ट। सो if you want to learn from me personally, I will not charge anything. Only charge is that तुम्हें डांट खानी पड़ेगी। I'm sorry, I am very sharp. Okay? और काम देता हूँ मैं, ये हो गया पर्सनल लेवल पे। If you want to work, if you want elective course, तुम अपनी मैडम से बात कर लो कि मैडम ऐसा है, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, फिर मैं उनसे आगे बात करता हूँ। बिकॉज मैं मुझे नहीं पता था कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कोर्स भी आपके हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता। ओके? यस और कुछ? सर, will you be there at faculty or will be online? देखो यार, ये सब तो अब अगर मुझे कोर्स मिलता है, आई विल ट्राई टू कम टू फैकल्टी। Yes sir, it would be better. देखो ये सब छोटी, ये सब ऑपरेशनल चीज़ है, ये क्वेश्चन तब पूछते हैं। मैं बीएचयू के अंदर ही बैठा हूँ अभी पर, मैं जोधपुर कॉलोनी में हूँ, बाहर नहीं हूँ। सर ये कोर्स वाली बात हम बाद में करते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो कोर्स के बारे में बाद में, लेकिन दोज हु वांट टू गो पर्सनली फॉर इंटर्नशिप व्हाटएवर, ठीक है मैडम? हाँ, तो इंटर्नशिप करना चाहते हैं सर से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद बाकी जल्दी वो बात है ऑफिशियली। ठीक है। तो जिन लोगों ने नाम दिया था इंटर्नशिप का, अगर इफ दे वांट to proceed in this direction, so he can he or she can directly contact yes him. definitely. He has already shared his phone number and email address. You can directly contact him. All right? Yes. Yes. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैडम फीडबैक ऑनेस्ट लेके बता दीजिएगा, बिकॉज हमें पहली बार हम पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स के बच्चों को, आज तक पढ़ाया नहीं। जी सर, जी बिल्कुल सर। Thank you everyone for tolerating for 2 hours. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir for hosting.
माइनस